इंटेलेक्ट ऑफ द बराटा. इंटेलेक्ट कैसा रहता है, राइट? द थिंकिंग, द पावर ऑफ थिंकिंग, द परसेप्शन, हाउ परसीव, right? It is the intellect of Bharata that is sacrificed for the survival. It is the defective intellect that throws a shadow over the will, intelligent, morals, attitude, reaction, and sensitiveness. The intellect is defective. And without this type of intellect, it is not right to prescribe any Bharata salt or Bharata elements. So this kind of intellectual quality must have in the Bharata. The defective intellect. हाउ द डिफेक्टिव इंटेलेक्ट, कैसा इंटेलेक्ट रहेगा बराइटा में, हम देखेंगे. उस द पर्सन और द पीपल हु स्माइल अ लॉट अननेसेसरीली. मतलब हम देखते हैं कि क्लिनिक में जब कोई बंदा या पर्सन पेशेंट आता है, तो दैट एवरी व्हेन वी क्वेश्चन दे लाफ और दे स्माइल अननेसेसरीली without any reason. See, laughing immoderately, laughing highly, immoderately, might be there is a different remedy. But here, smiling without reason, unnecessary during the interview. For a petty things, for a small things, for a trivial things. और आप सरप्राइज, आप सोचते रहेंगे कि यार ऐसे क्या बोला है मैंने कि ये ऐसे स्माइल दे रहा है या हंस रहा है, मैं कोई ऐसे मजाक तो नहीं किया, ये हंस रहा है. So what was the funny thing that has I talk, क्यों ऐसे हंस रहा है? So this could be comes in your mind. There are the ladies who every now and then hide their face in their hands or look away smilingly and bashfully to show the embarrassment at the slightest cause. मतलब hiding their face, showing their embarrassment, but at the slightest cause. It is not कि ऐसे कुछ बोल दिया है कि जिसमें काफी ऐसे शर्माने की जरूरत पड़ती है, तो it is a proportionate. But here slightest, मतलब आप अगर पूछेंगे शादी हो गई क्या, तो भी शर्माएंगे. If you ask the lady, this is practically I want tell you, if you ask the lady about the sexual relations or sexual function, you know, with the husband or right with the else, so it is obvious that might be the such behavior is the acceptable. But if you ask the lady ki whether you are married or not, and they showing the such a kind of bashfulness which is the disproportionate, then think of the Bharata. Now the rubrics comes from this is the laughing causeless, laughing immoderately, laughing at reprimands. मतलब बच्चा है, there are some other remedies also like a Moxol. Laughing at reprimands मतलब पापा मम्मी डांट रहे और ये हंस रहा है, पर वो मक्सौल अलग है ना. ये बराइटा में क्या होता है, उसको समझ में ही नहीं आता है कि उसने गलती की है. That intellectual quality is not developed. That's why they laugh. Laughing serious matter over and smiling alone vain. All these rubrics gives rise to a Baraita as one of the remedy. Not only the Baraita, but one of the Baraita remedy. Now the peoples who have confused while answering. Peoples who have confused while answering, है ना, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है बट सिर खुजा रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, या फिर आपने दो क्वेश्चन एकदम से पूछ लिए, है ना, या फिर क्वेश्चन पूछे फिर दूसरा क्वेश्चन पूछे, है ना, तो पेशेंट पहले ही क्वेश्चन का आंसर देने में डिले करता है. दे कंफ्यूज बिटवीन द टू टू क्वेश्चन. तो क्या हुआ था, ये हुआ था कि वो हुआ था, पहले ये शुरू हुआ था कि पहले वो शुरू हुआ था. मतलब पेशेंट बोल रहा है सर दर्द भी है, कमर दर्द भी है, पेट में भी गड़बड़ है. अब पूछा ये कब शुरू हुआ, ये कब शुरू हुआ, तो पेशेंट गेट कंफ्यूज. कंफ्यूज लॉट. कंफ्यूजन मतलब स्लाइटेस्ट, और मतलब थोड़ा कंफ्यूजन followed with the clarity, that is the different. But the confusion at the slightest thing, he or she can easily remember.
memorize. But here the Baryta gets confused easily. Again, the peoples who do not understand the importance of important thing or have wrong priorities about the health. Barabar. The people who do not understand the importance of important things or have wrong priorities about health. मतलब कोई अडल्ट है या अडोलसेंट है ना, उसको अगर पापा ने बोला कि बेटा आज इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, आज का लास्ट दिन है ना, या आपको सब्जी भी लाना है, आपको ये पेन की रिफिल भी लाना है, तो उसके लिए वो सब्जी ला लेगा, पेन की रिफिल ला लेगा, बिल नहीं भरेगा, है ना, लाइट कट हो जाएगी। तो बाय जजमेंट, बाय इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, है ना, वो क्या सोचेगा, दे डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पेइंग द बिल, कि अगर हम इलेक्ट्रिक बिल नहीं भरेंगे तो बिजली कटेंगी, हमको अंधेरे में रहना पड़ेगा। सो द प्रायोरिटीज, समटाइम्स इवन द मेड्स भी रहता है, या हाउस मतलब मेल, sorry, female working in the house as a housewife, right? Even in, you can see in the working woman, working male. अभी ऐसा है कि कुछ ऐसे मैंने एग्जांपल देखे हैं कि हस्बैंड को सुबह 7 बजे जाना है या 8 बजे जाना है, 9 बजे जाना है, जैसे ड्यूटी पे जाना है, 8 बजे जाना है, बराबर है। अभी इसको पता है कि 8 बजे जाना है, मतलब उस उनको टिफिन देना है, तो सब्जी रोटी बनाना है, पर ये उठ के झाड़ू मारेंगे, पानी पानी देंगे, मतलब बर्तन धोएंगे, है ना, झाड़ को पानी देंगे, और फिर जब हस्बैंड का एकदम 2 5 10 मिनट 15 20 मिनट 8 बजने को कम रहता है, तब फिर सोचेंगी हाँ अभी ये करना है करके, अभी खाना बनाना है। शी डोंट अंडरस्टैंड द प्रायोरिटी कि मेरे पास 1 घंटा ही है। द जजमेंट लेवल, है ना, वो लैकिंग होता है कि मेरे पास 1 घंटा ही है, तो मुझे ये नहीं करना है, पहले ये करना है, मुझे पहले खाना बनाना है, सो दैट मैं हस्बैंड को टिफिन दूं और वो ऑफिस जाए। अगेन एक बार का नहीं, अभी हस्बैंड समझाए उसको कि नहीं मुझे देर हो जाएंगी पहले, तो मुंडी हिलाएंगी, और सेकंड टाइम थर्ड टाइम सेम डूइंग द सेम मिस्टेक। देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रूब्रिक कि डूइंग द मिस्टेक अगेन एंड अगेन, दिस इज द बराटा, राइट। सो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रायोरिटीज, कि क्या कौन से इंपॉर्टेंट थिंग है, पहले कौन सा करना चाहिए, ये समझता नहीं है। There is a difficulty in understanding this thing. So many times we see the patient coming with the serious ailments, yet stressing and asking for help for the minor ailments. How do you know disease है इतना बड़ा, या स्पाइनल कॉर्ड का बीमारी है, या किसी को कैंसर, नो कैंसर बताया है ना, he knows I'm suffering with the cancer, but he is more concerned with his pimples over the face, or she is more concerned with कि डॉक्टर साहब पहले इसको ठीक करो पिंपल्स को, बाद में बाकी का प्रॉब्लम सॉल्व करना। So this is the things that you can perceive when the patient comes in your clinic, कि पेशेंट को उसके जो प्रॉब्लम है उसका सीरियसनेस भी नहीं समझता। So when you observe these things, think of this, but with condition कि अदर जो फीचर्स हैं वो भी मैच होने चाहिए, कि हमको ये नहीं कि एक एक पॉइंट मिल गया और दे दो बराइटा कार, बाकी पॉइंट भी है उसको भी मैच करना है, because we prescribe on the basis of totality, not a single symptoms which is even not clear, मतलब एक इंसिडेंस पे या एक ऑब्जर्वेशन हुआ है सिर्फ और हमने मेडिसिन दे दी है, not so, take it as easy. Wrong priorities even at work or home are the hallmark of the Baraita.
रॉन्ग प्रायोरिटीज, है ना, जो एग्जांपल दिया एक हाउसवाइफ का। एक वर्क में भी ऐसे ही होगा, इफ ही और शी इज द बराइटा लेडी, बराइटा मेल, people who are fixed in their routine, the baraita is called routinist. Routinist, work routine desire, the remedies are, if you see the rubric आपके पास होगा, आप अभी भी देख सकते हैं, द वर्क रूटीन डिजायर, अगर 10, सॉरी, अगर 5-6 रेमेडी अगर उसमें मेंशन किए होंगे ना, तो 4 तो बराटा ग्रुप के ही मेडिसिन है। मतलब बराटा कार्ब भी है उसमें, बराटा आयोड भी है, बराटा म्यूर भी है, और बराटा फॉस भी है। सो qualitative these symptoms is the work routine desire. That's why the Baraita is highly routinist. Routinist means क्या? तो रूटीन मतलब जो चल रहा है सुबह से शाम तक, जो चल रहा है कल भी परसों भी, 2 साल से, 4 साल से, 10 साल, he stuck to that. He never think to change or comes out of it. वैसे ही चाहिए। That's why the another characteristic symptom of the Baraita, change aversion, doesn't want to change, doesn't want to change, aggravation, change doesn't tolerate, चेंज नहीं चाहिए, जो चल रहा है बस उसी को कंटिन्यू करते रहो। एंड दिस, इफ द पर्सन हैविंग दिस थिंकिंग प्रोसेस, देन एनी पर्सन, वेदर इट, वो फिर डॉक्टर भी क्यों ना हो, उसके लिए भी हम बराइटा सोच सकते हैं। मतलब कोई सर्जन है और जो प्रोसीजर कर रहा है, 10 साल से जो प्रोसीजर कर रहा है उसको ही फॉलो कर रहा है, उसको ही, ना इधर ना उधर, इन स्पाइट ऑफ देयर इज अ लॉट ऑफ एडवांसमेंट, बट ही स्टिक, वो अपना दिमाग और कहीं नहीं दौड़ा रहा है, कुछ एडिशनल उसमें कुछ ऐड नहीं कर रहा है। या हमारे इसमें होता है ना, बीएचएमएस में काफी लेक्चरर होते हैं जो अपने नोट्स रहते हैं उनके, जो 10 साल से वही नोट्स बच्चों को पढ़ाते हैं, उससे बाहर या उसके कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं, बस वही है। सो दिस इज अप्लीकेबल इन ऑल द फील्ड। देन यू कैन थिंक ऑफ दिस, द रूटीनिस्ट जो चल रहा है, दे डोंट वांट टू चेंज, दे डोंट वांट टू ऐड, उनका दिमाग वैसे काम ही नहीं करेगा, वो घोड़े उनके दिमाग के दौड़ेंगे ही नहीं, एक ही जगह पे रहेंगे। So they cannot accept anything new suddenly, or never accept the new things. To accept anything new is beyond the capacity of Baraita. To accept the anything new is beyond their capacity. So this is the highly qualitative feature of Baraita. Again, if you see the modern जो हमारा ये अभी चल रहा है, कि अभी हमारे इसमें जो मॉडर्न जो गैजेट्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जैसे मोबाइल्स आते हैं या और कुछ आते हैं, तो इसमें भी बराइटा कैसे बिहेव करेगा। मतलब पेशेंट के पास या बराइटा पर्सन के पास अगर मोबाइल है, तो वेदर ही कैन एबल टू हैंडल मोबाइल वेरी इजीली, प्रॉम्प्टली, क्वालिटेटिवली, सभी वो फंक्शन उसको एकदम से ग्रास्प हो जाएंगे, सभी फंक्शनों अच्छे से हैंडल कर पाएगा, है ना। कैसे रहेगा बराइटा अगर मोबाइल है उसके पास, तो ही ओनली नोस कि हाउ टू कॉल एंड हाउ टू ओपन द मैसेज, जस्ट बस। अगर उसका एंड्रॉइड मोबाइल होगा उसके पास, तो भी वो उससे ज्यादा कुछ देखने का, करने का, बोलते हैं ना किसी को काड़ा करने का, नया कुछ देखने का, कुछ उसमें और कुछ है क्या, जो जिज्ञासा रहती है, इंक्विजिटिवनेस रहती है, दैट डजंट प्रेजेंट इन द बराइटा ग्रुप। सो दे ऑलवेज, बस उसको वही पता रहेगा कि कॉल कैसे करना है, कॉल कैसे उठाना है, not more than that, though the mobile has a lot of features in it, right? So the people who cannot use new gadget, modern machine equipment, the baraita, despite being taught again and again, will falter at even operating an ordinary washing machine or ordinary machine, बराबर से, difficult to get the things or register the things at once, अगर समझाने के बाद भी, so it is very difficult to make understand to the baraita patient, बराबर।
इवन द बराइटा कांट डू द मल्टीटास्क एट अ टाइम। जैसे कल एक लेडी थी, who was suffered with the acute fissure and chronic piles, external piles, है ना उसका। हाई मतलब इंटेलेक्चुअल थी, 3 बजे उठ के पढ़ाई करना, है ना, मैरिड थी, बच्चा था। तो मल्टीटास्किंग मतलब पढ़ाई भी करना है, एग्जाम भी देना है, बच्चे को भी संभालना है, स्कूल में टीचर थी तो स्कूल में भी जाना है, वहां का भी वर्क करना है, वो घर में भी लाना है। तो कैसे करती थी? तो जैसे अभी खाना बच्चे के लिए टिफिन बना रही है, तो बच्चे को तब नहा के भी देना, फिर उसको बोलना सॉक्स पहन ले, फिर उसको बोलना नहा ले, फिर साबुन लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, एट अ टाइम डूइंग द डिफरेंट डिफरेंट टास्क, मल्टीटास्क एट अ टाइम। तो someone has the capacity to do this, but Baraita don't have। वो एक समय पे एक ही काम करेगा। अगर उसको 2 या 3 बता दो तो कंफ्यूज क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा, इसमें क्या है, उसमें क्या है, ये कैसा करो, वो कैसा करो। वन इज द बिकॉज ऑफ द रूटीनिस्ट, सेकंड इज द हाईली कंफ्यूज। तो उसका इंटेलेक्ट इतना चलेगा ही नहीं कि एट अ टाइम 2 या 3 काम करो। तो मल्टीटास्किंग इज डिफिकल्ट फॉर द बराटा। सो पीपल हु डू नॉट चेंज देयर जॉब फॉर इयर्स, अगेन ये हम देखते हैं, देयर कुड बी अ डिफरेंट रीजन। ऐसे नहीं कि कोई अगर जॉब नहीं चेंज कर रहा है अपने गांव, मतलब अपने कोई नागपुर में है तो नागपुर में ही रहना चाहता है, वो बैंगलोर में नहीं जाना चाहता, या अगर उसका ड्यूटी मुंबई में लगा है या और कहीं लगा है, राजस्थान में लगा है, तो वो नहीं जाना चाहता। देयर कुड बी सम डिफरेंट रीजन। डिफरेंट मतलब माइट बी ही इज इमोशनल और शी इज द इमोशनल अटैच टू फैमिली। माइट भी कि हो सकता है कि उसके पापा बीमार है, मम्मी बीमार है, उनको देखभाल के लिए कोई नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट। तो उसके पीछे भी हमको देखना है। पर यहाँ बराइटार का क्यों? क्योंकि चेंज उसको भाता नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको भाती नहीं है। अगर एक पोजीशन में बंदा है तो प्रमोशन भी नहीं चाहिए, वो जो काम है बस वही करना है कंटिन्यू, जहां उसका स्टार्ट हुआ वर्क, या जहां जो पोजीशन पे उसने जॉब स्टार्ट किया है, मोर एंड लेस वही पोजीशन पे जॉब क्वाइट भी हो जाएगा, मतलब वो रिटायर्ड भी हो जाएगा। जबकि वो पोजीशन में उसके जो दूसरे फ्रेंड सर्कल है, कलीग है, वो प्रमोशन लेके वहां गए, यहाँ गए, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में गए, प्रमोशन हो गया, अपडेट हो गए, बट दिस पर्सन इज एट द सेम लेवल। So do not want to change their job for years. They do not have the capability to take the responsibility or the new responsibility. They refuse promotion for a fear of responsibility. People who cannot change their plan at the last moment, मतलब अगर जाना है और सडनली, या उसको समझ में आया नहीं, ये नहीं करना है, अभी वो करना है, तो they can't do, they get confused how to do now at this moment. So there is always a learning difficulty in the Bharata. The rubrics are learning difficulty. Learning difficult learns the same thing over and over again, yet remains untrained. See, only 2 remedies are there. See, the very wonderful rubric is there. Learning difficult, right? Learn the same thing over and over. मतलब एक ही बात को बार बार ही उसको सीखने की कोशिश कर रहा है, पर फिर भी अभी तक पूरी तरीके से ट्रेन नहीं हुआ। So these qualities, if you see in a person, in a patient, then think of the Baraita. Again, the person who do not learn from their mistake, even when corrected, कि ये आपकी गलती है, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था, इवन आप अगर इनपुट्स दो फिर भी हो, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द ऑब्स्टिनेसी कि मेरा ही सही, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द ईगोटिज्म या हॉटीनेस, इट इज बिकॉज वो चीज उसके इंटेलेक्ट में रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ है। मतलब फॉर अ वाइल रजिस्टर्ड, समझा, फिर वैनिश हो गया।